میلاد النبی کے سلسلے میں بہت زیادہ لوگوں کی تعداد تھی. یہ ابھی جلوس کا شروع تھا جہاں سے سوسائڈ بومبر نے اندر داخل ہونے کی کوشش کی. وہاں پہ موجود ڈی ایس پی ایک سینئر افسر تھا, وہ جس نے آگے بڑھ کے روکنے کی کوشش کی اور اس پہ سوسائڈ بومبر نے اپنے آپ کو بلاسٹ کیا. ماضی میں اس علاقے میں داعش نے کلیمز کیے ہیں. 2 ایسے واقعات ہیں جو آج کے دن 12 ربیع الاول کے دن مسجدوں کے اندر ایک ہنگوم میں اور ایک مستوم میں انتہائی قابل مذمت ہے. ریاست ان ظالموں کے خلاف ہر حد تک جائے گی, ایک ایک کو چن چن کے اس مقدس خون کا جو ہے وہ بدل لے. السلام علیکم, ویری وارم ویلکم ٹو نیوز لائن. میں ہوں ڈاکٹر ماریہ ذوالفقار خان. ویوز, آج نبی و آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت جو ہے وہ بڑے جوش و عقیدت سے جو ہے وہ پورے ملک میں جو ہے وہ منایا جا رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ یوم عقیدت ہے وہ اسی طرح مستونگ میں بھی بہت جوش و جذبے سے منایا جا رہا تھا, جب ایک بہت سوزگار واقعہ جو ہے وہ پیش آیا, جس کے نتیجے میں ایک جو دہشت گردی کا حملہ تھا, اس کے نتیجے میں 52 افراد جو ہیں وہ اب تک کی اطلاعات کے مطابق جو ہیں وہ جاں بحق ہو چکے ہیں اور 60 سے زیادہ جو ہیں وہ زخمی ہیں. اب اسی طرح کا ایک جو دہشت گردی کا حملہ تھا وہ ٹوین بلاسٹ ان کو ہم کہیں گے, وہ ہنگو میں جو ہے وہ پیش آیا, نماز جمعہ کے موقع پر جو ہے وہ پیش آیا, جس میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق 5 افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہو چکے ہیں اور 12 کے قریب جو ہیں وہ زخمی ہیں. آج کے دن ان واقعات کا پیش آنا, 12 ربیع الاول کے دن ان واقعات کا پیش آنا, جس دن پوری ملک میں اور بلکہ شاید پورے دنیا کے جو مسلمان ہیں وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ یوم ولادت جو ہے وہ منا رہے ہیں, ایک بہت ہی میرا خیال ہے شرمناک فعل جو ہے اس کو کنسیڈر کیا جانا چاہیے اور بہت ہی زیادہ اس پر جو ہے مذمت, جتنی مذمت بلکہ ہو وہ کم ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ ہم ان مذمتوں سے کب تک جو ہے وہ کام چلاتے رہیں گے, کب تک ہم جو ہے یہ باتیں کرتے رہیں گے, کب تک ہم یہ سوچتے رہیں گے کہاں سیکیورٹی لیپس تھا, کہاں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, کہاں جو ہے سیکیورٹی فیلئر تھا. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو میرا خیال ہے پچھلے کوئی 20, 21, 22 سال سے ہم وہی ڈسکشنز جو ہیں وہ بار بار کرتے آ رہے ہیں. اس وقت جو بہت بڑا ایک لمحہ فکریہ ہے وہ اس لیے بھی ہے کہ الیکشن جو ہیں ان کی آمد ہے. ہماری پولیٹیکل جماعتیں جو ہیں وہ اس وقت الیکشن میں جانے کے لیے تیار ہیں, اور یہ جو دہشت گردی کے حملے ہیں, انہوں نے دہشت گردوں نے جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کو بھی ایک طرح سے تنبیہ کیا ہے, ایک طرح سے ان کو جو ہے وہ وارن کیا ہے کہ یہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے جب آپ الیکشن کیمپین میں جائیں, کیونکہ آپ کو یاد رہے کہ اب سے کچھ ہی دن پہلے جو ہے وہ اسی طرح ایک حملہ جو ہے, اور مستونگ کا علاقہ ہی تھا جہاں حافظ حمداللہ صاحب پر جو ہے JUIFA کے رہنما ہیں ان پر ایک حملہ ہوا تھا. خوش قسمتی سے ان کی جان جو ہے وہ بچ گئی, لیکن بائی اینڈ لارج جو ہے وہ ایک سیکیورٹی سچویشن جو ہے وہ کریٹ ہو گئی. اب سوال تو یہ بھی ہے اور بہت بڑا سوال ہے کہ جو ہماری وفاقی اور نگران حکومتیں, جو صوبائی اور وفاقی حکومتیں ہیں, ان کے لیے فری, فیئر, ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانا, سیکیورٹی پروٹوکولز جو ہیں وہ پرووائڈ کرنا, وہ کس حد تک جو ہے وہ ممکن ہوگا. اب اس میں ایک کیونکہ ہماری بڑی ایک جو ہسٹری ہے اس کا ایک تلخ جو ہے وہ پہلو 2007 کا بھی ہے. 2008 میں اسی طرح جنوری میں جو ہے وہ الیکشنز اناؤنس ہوئے تھے, اور 2007 میں اسی طرح کی جو دہشت گردی کی ویو تھی اس میں ہم ایک قومی لیڈر بینظیر بھٹو صاحبہ کو جو ہے وہ گوا چکے ہیں. تو ہماری ہسٹری اس حوالے سے کچھ زیادہ اچھی نہیں ہے اور بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے ہمارے تمام اداروں کے لیے. جنہوں نے الیکشنز کرانا ہے, جنہوں نے الیکشن کیمپین جو ہے وہ لیڈ کرنی ہے, بیکاز کس حد تک یہ الیکشن کیمپین جو ہے وہ آپ کو ایک ہماری جو سیاسی جماعتیں ان کو اجازت ہوگی کہ وہ لیڈ کر سکیں, تو اپنے لیے کیمپیننگ کر سکیں. تو دیٹ ریمینس ٹو بی سین کہ الیکشن کن حالات میں ہوں گے, کیا الیکشن ہو پائیں گے, کیا الیکشن, سب سے بڑا سوال, فری, فیئر, ٹرانسپیرنٹ ہو پائیں گے. اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ شیلا رازا صاحبہ موجود ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے, ساتھ ہی ساتھ علی گوہر صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, پاکستان مسلم لیگ نواز سے آپ کا تعلق ہے, اور ہمارے ساتھ سینیٹر ڈاکٹر ہمایوں مومند صاحب بھی موجود ہیں, پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے. تو شیلا صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتی ہوں. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا ہماری پولیٹیکل پارٹیز کو یہ ادراک ہے کہ یہ جو ایک نئی دہشت گردی کی ویو جو ہے وہ سٹارٹ ہوئی ہے کہ اٹ کین ہیو ڈیٹریمنٹل افیکٹس آن دی الیکشن پروسیس, اس کا ایک امپیکٹ جو ہے وہ آ سکتا ہے, کیونکہ یاد رہے آپ کو کہ جس وقت پنجاب اور KP میں
इलेक्शन करवाने थे तो उस वक्त जो डिफेंस मिनिस्टर थे उन्होंने सिक्योरिटी की ही एक जो प्ली लेकर उनको डिले कराने का कहा था कि हम इनको नहीं करा सकते बिकॉज सिक्योरिटी सिचुएशन हमें इजाज़त नहीं देती, फौज हमारे पास इस वक्त मौजूद नहीं है, उस तरह मौजूद नहीं है कि वो इलेक्शन में जो है वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे सकें। क्या कहेंगे इस पर? अच्छा मारिया, ज़ाहिर है कि आज मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा खुशी का दिन और पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए इससे बड़ा दिन हो नहीं सकता, लेकिन जिस तरह से आज खूरेज़ी हुई है मुझसे बहुत दिल दुखा है। और सियासी तौर पर हम मुशर्रफ का दौर जो था उसमें पहुंच गए कि जब वो ख़त्म हुआ तो हर तरफ धमाके हो रहे थे, और आज एक दिन में 2, ये भी बड़ा परेशान कुन लम्हा था। और देखिए, और किसी पॉलिटिकल पार्टी को इतना मसला हो या ना हो, ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ को तो मसला ही नहीं है, क्योंकि ये उनके छुड़ाए हुए दहशतगर्द हैं जो वहाँ पे अफ़गानिस्तान जेल में थे, उनको रिहेबिलिटेशन के नाम पे उन्होंने किया, यहाँ लाया गया है। तो ये हमें भुगतना है, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा पीपल्स पार्टी को नुकसान होगा, क्योंकि हम बिल्कुल खुल के दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हैं। ना हमारे किसी लीडर ने कभी ये कहा कि हमारे ख़यालात मिलते हैं, ना ये कहा कि ये बिछड़े भाई हैं और इनको दफातर दो। तो इसका सबसे बड़ा नुकसान हमें है, क्योंकि हमें 2013 में भी यही धमकी मिली थी कि हमारे जुलूसों पे और जलसों पे जो है वो दहशतगर्दी की जाएगी, और हम कैंपेन नहीं कर सके थे। रही बात ये, तो देखिए मजम्मत तो होती है, लेकिन हर दफ़ा जो है वो इनका इलाज 2 तरीक़ों से करने की कोशिश की जाती है। एक मज़ाकरात और दूसरा ऑपरेशन। हमने हमेशा यही कहा है कि इनसे खैर की तवक्को नहीं है, ये अपनी बात पे रहते नहीं हैं। और जब ऑपरेशन राह रास्त का आगाज़ किया था हमने, तो हमारी हुकूमत से पहले ये कहा जाता था कि इस्लामाबाद से 20 किलोमीटर दूर रह गए थे। लेकिन हमने ऑपरेशन राह रास्त किया, और फिर नून लीग के ज़माने में वो दोबारा कंटिन्यू हुआ, ये रियलाइज़ करके कि उनके और आपके ख़यालात एक से नहीं हो सकते। तो आज तो मैं नहीं समझती कि किसी को कोई मसला है, और जहाँ दुनिया के सारे काम हो रहे हैं और होंगे इंशाल्लाह, इनके साथ तो एक ही इनका तरीक़ा है कि इनको ख़त्म किया जाए, नाबूद किया जाए, इस नाबूद किया जाए और अपने कामों को रखा जाए, क्योंकि ज़िंदगी को आगे बढ़ना है। पाकिस्तान जो है पहले ही उसकी मईशत जो है इस वक्त आप देख ही रहे हैं किस तरह की है, उसमें अगर हम दहशतगर्दी को गालिब आने देंगे तो बहुत बड़ा मसला होगा। हमें सबसे देखें आप, बरतानिया में जो है इस पे बात हुई कि वहाँ पे हमारे फंड्स रोकने की बात हुई, लेकिन 300 के करीब लोगों ने, 298 लोगों ने कहा, मेंबर्स ने कहा कि नहीं, उनका दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ बड़ा काम है और ये चीज़ें हैं, तो हमें दहशतगर्दी को ख़त्म तो करना है। और यकीनन इनकी मौजूदगी में हम इलेक्शन तो क्या, हमारे सारे काम बर्बाद होते रहेंगे, लेकिन कोई काम रुकता नहीं है, इलेक्शन भी होगा। इलेक्शन भी होगा। अच्छा, डॉक्टर साहब की तरफ चलती हूँ और फिर अली साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करूँगी। डॉक्टर साहब, अभी शैला साहिबा ने आपकी जमात पर भी तनकीद की, साथ ही साथ PMLN का भी एक नज़रिया हुआ करता था, उस पर भी उन्होंने तनकीद की कि हमारा नज़रिया शहबाज शरीफ की जो स्टेटमेंट थी गालिबन उसकी तरफ जो है वो रेफरेंस था शैला साहिबा का। पर एक बात शैला साहिबा की बिल्कुल ठीक है जो बात कर रही हैं कि एक वही मोडस ऑपरेंडा जो है वही सेम रहता है, मुज़ाकरात करो, मुज़ाकरात जिस वक्त कर रहे होते हैं उस वक्त हमें बताया जाता है जी गुड तालिबान है, बैड तालिबान है, उसके बाद जिस वक्त हम वही जो है वो हमारे साथ जो सलूक है, जो हिस्ट्री है वो रिपीट होती है, जिसमें फिर से ये दहशतगर्दी के हमले जो है स्टार्ट हो जाते हैं, दीज पीपल गेट एम्बोल्डन्ड, वो सारी चीज़ें हम जब दोबारा फेस कर लेते हैं फिर हम कहते हैं नहीं जी अब ऑपरेशन करें।
क्या आप समझते नहीं है कि वी कीप ऑन मेकिंग द सेम मिस्टेक ओवर एंड ओवर अगेन एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट्स, जबकि सामने वाला जो है वो उसी तरह है, वो बदल नहीं रहा और उसने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको बता दिया है कि क्या वो हैं, कैसे वो चलते हैं, क्या उनके अज़ाइम हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इट्स वेरी सैड। एक तो आज के दिन में ये जो दो वाक़यात हुए ये बज़ाते ख़ुद बहुत अफसोसनाक हैं। बहुत सारे लोगों के घरों के चिराग, उनके किसी के बाप, किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का मियाँ, वो सारे शहीद हुए और बहुत सारे लोगों को मतलब वो ज़ख्मी हुए। तो इट्स अ वेरी सैड डे एंड इट इज़ इवन मोर सैड व्हेन जब पॉलिटिशियंस हैं जिनको शायद एविडेंस बेस्ड डिसीजंस के बारे में पता ना हो और वो अपनी राय इस किस्म की दे दें। मतलब आई डोंट वांट टू से थिंग्स और आई डोंट वांट टू क्रिटिसाइज अनदर पॉलिटिकल पार्टी फॉर टेलिंग अमेरिकन्स कि आप आते जाओ ड्रोन मारते जाओ और हम लोग यहाँ पे कहेंगे कि तुम ना मारो। तो इस किस्म की पॉलिसीज़ के ऊपर मैं कमेंट नहीं करना चाहता। देखिए इस तरह है कि ये टेररिज्म जो है ना, इट्स नॉट अ वेरी सिंपल इशू, इट्स अ मल्टी फेसेटेड इशू। और इफ़ यू वांट टू जब आप कहते हैं ना कि शुड वी नेगोशिएट विद द टेररिस्ट, उनसे बात करनी चाहिए नहीं, आप किसी भी इदारे में देख लें, आप पॉलिटिकल पार्टीज़ में देख लें, आप इंस्टीट्यूशंस में देख लें, देयर आर ऑलवेज a spectrum of people. Within terrorists there is a spectrum of people. There are very hardliners, there are medium and there are not so hardliners. उन सब के इनके बाज़ certain points होते हैं. So there are certain things, जैसे ऑसबोर्न यूनिवर्सिटी का एक आर्टिकल है negotiating with terrorists discrete form of diplomacy. अगर आप वो पढ़ लें तो आपको उसमें समझ आएगी कि आपको उनको पता है आपको कि वो लोग अपने मकासद के लिए चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आपने उनके साथ नेगोशिएट करना ही करना है। फिर नेगोशिएटिंग विद ग्रुप्स दैट यूज टेररिज्म, लेसन्स फॉर पॉलिसी मेकर्स। ये अगेन ऑनरे क्रोनिन है, उसने काफ़ी आर्टिकल्स लिखे हुए हैं और उसका लुबाब यही है कि आप जो अक्लमंद हुकूमतें होती हैं वे लॉन्ग टर्म में टेररिस्ट को इंगेज करती हैं। इस वजह से नहीं कि वो अपना काम बंद कर देंगे, लेकिन इस वजह से कि अगर आप उनको एंगेज नहीं करेंगे तो तब भी वो अपना काम बंद नहीं करेंगे। अगर आप उनको एंगेज करेंगे तो आप उनके एक सर्टन फैक्ट्स को उनसे अलग करना शुरू कर देंगे एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दोज फैक्ट्स डू डाई ऑफ। और इसकी बहुत सारी मिसालें हैं। आपकी मनीला के साथ, मनीला में जो टेररिस्ट थे उनके साथ आपने नेगोशिएशंस के बाद और फिर उसके दरमियान में लोगों को गारंटर ला के बिठा के वो कर दिया है। आप जो IRA है उसको देख लें, एट द एंड ऑफ द डे देवर ऑल्सो आपके तामिल टाइगर्स हैं, वो हैं। तो आपके बहुत सारे खुद ये जो तालिबान, मतलब किसी और मुल्क के लिए तो तालिबान भी टेररिस्ट वो थे और उन लोगों ने उनके साथ एट द एंड ऑफ द डे नेगोशिएशंस किए, सब कुछ किए। तो आपको एज अ पॉलिटिशियन, एज वो हमें देखना चाहिए कि वो मसले क्या हैं, ये किस वजह से हुआ है। आई एम नॉट द बेस्ट पर्सन टू कमेंट ऑन इट and I do not feel that I am the right person, लेकिन I can tell you to the best of my knowledge कि मैं ये समझता हूँ कि उनके साथ नेगोशिएशंस। लेकिन देखिए अब मसला क्या है, मसला ये है कि वो हमारे बॉर्डर्स, जो हमारे पोरस बॉर्डर्स हैं वहाँ से आते हैं। तो आपको जो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट है उनके साथ आपको एक सख्ती से कहना पड़ेगा कि अगर आपके वहाँ से आए तो हम अपने बॉर्डर्स आपके लिए बिल्कुल बंद कर देंगे। और मैं ये समझता हूँ कि अफगानिस्तान की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, आई थिंक दे विल हैव अ वर्ड ऑफ देयर ऑनर। उन्होंने अभी इतला भी आई थी, उन्होंने कोई 100 पता नहीं कितने लोगों को TLP वालों को, नॉट TLP, TTP वालों को पकड़ा भी है, और TTP जो उनको पकड़ा भी है और जो उनके वहां से एक्टिव थे उस लिहाज से। सो माय अपॉलॉजीज फॉर TLP के उसका कहने के लिए TTP था। विद ड्यू रिस्पेक्ट डॉक्टर साहब, आई थिंक जो आप लेसन्स की बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है हमें तो किसी से लेसन्स कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारा जो मुल्क है, हम इस पे जो है वो एक बड़ी डिटेल्ड किताब लिख सकते हैं कि हमारे क्या लेसन्स हैं, क्योंकि हम तो कितनी देर से इसको जो है वो फाइट कर रहे हैं। जहाँ जहाँ आपने बात की कि जहाँ टेररिज्म ख़त्म की गई है, ऑफ कोर्स वो फिर एक कल्मिनेशन पॉइंट होता है ना, वो आपने करके और उसको ख़त्म किया। ये ऑन गोइंग प्रोसेस जो चल रहा है हमारे यहाँ पे,
और अगेन मैं इसलिए कहूँगी बिकॉज वी कीप ऑन मेकिंग द सेम मिस्टेक। हम यही हमारा अभी तक हमें नहीं समझ आई, हम फिर चले जाते हैं उस गुड तालिबान बैड तालिबान डिबेट में, जबकि हमें पता है अभी जो आप भी जो ये बात कर रहे हैं, अगर हम बॉर्डर पार की बात करें तो हम उनको कंसिडर करते हैं वो गुड तालिबान है, वो हमारे मुल्क में हमला नहीं होने देंगे, वो अफगान सॉइल इस्तेमाल नहीं होने देंगे, अफगान सॉइल इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ या किसी और मुल्क के खिलाफ जैसे कि उन्होंने कहा है वो नहीं होने देंगे। बट मुसलसल ये वाक़यात जो हैं वो हो रहे हैं, येट वी वांट टू बिलीव दैट यू नो दे आर द गुड तालिबान्स। मैं ज़रा अली गौहर साहब की तरफ जाऊँ। अली गौहर साहब ये बताइए कि अगेन बात वही हो रही है कि हम यही मजम्मत करते रहेंगे, यही बातें हम करते रहेंगे, और पिछले 20 साल से यही करते आ रहे हैं, हम भी यही कर रहे हैं, आप लोग भी टीवी पे यही कर रहे हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो आज हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासादत का दिन है और तमाम उम्मत मुस्लिम और बिलखसूस हमारे पाकिस्तान के जो मुसलमान भाई हैं जितने, उन्होंने आज हस्ब रिवायत जो है आज के दिन को बड़े जोश व खरोश के साथ मनाया। और दो वाक़यात जो कि इंतहाई अफसोसनाक हुए और जिससे हमारी पूरी कौम के दिल जो है वो रंजीदा हुए हैं, और यकीनी तौर पर वो जालिम लोग किसी रायत के मुस्तहिक नहीं हो सकते। दुनिया के, मैं समझता हूँ कि किसी मज़हब से उनका ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि दुनिया का कोई मज़हब भी इस तरह फस्तायत का और इस तरह जुल्म की तालीम तो कोई मज़हब भी नहीं देता। तो मुसलमान होना तो बड़ी दूर की बात है। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि आज के दिन जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत हुई थी तो कैसर व कसरा के महलों में दरारें पड़ गई थी और उनकी आमद की कई निशानियां जो थी वो उस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह मतलब दुनिया में आई। और अब तो माशाअल्लाह हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत जो है वो उनकी तालीमात के मुताबिक जो है वो चल रही है। जाहिर है उसमें नेकी बुराई ये चीज़ें तो साथ चलती हैं। अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को हदायत भी दे और रहम भी फरमाए। देखिए, जो ये वाक़यात हैं इसके बारे में मैंने अपने दोनों साथियों की बातें सुनी हैं। मुझे वो वक्त याद आ रहा है कि जब एक टाइम था कि मुल्क में हर चौराहे के ऊपर धमाका हो रहा था और काफ़ी हद तक दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ चुके थे। ज़रबे अर्ज़ का ऑपरेशन हुआ था, उस वक्त नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे और मुझे याद है कि जब उनकी गवर्नमेंट ख़त्म हुई तो 95% उनमें कमी आ गई थी। जब भी फोकस करके इन चीज़ों की तरफ रियासत मुतवज्जे होती है तो मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा नहीं, लेकिन कम अज़ कम इन वाक़यात की रोकथाम बहुत हो जाती है। आज भी जो एक दूसरा वाक़या हुआ जो जुम्मा के खुतबा के दौरान हंगू में हुआ, आप देख लें कि वहाँ पर हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज के कुछ जवानों की मतलब है कि हिम्मत और उनकी बर वक्त कार्रवाई की वजह से कुछ वो जहन्नम रसीद भी हुए दहशतगर्द और कुछ बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ, अगरचे एक जान का ज़ाया होना भी बहुत बड़ा नुकसान है। तो जाहिर है कि जो भी हमारी हुकूमतें हैं, चाहे PMLN की चाहे दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ की, एक तो ये है कि ख़ास तौर पर इसमें हमारी जो एजेंसीज हैं, जो हमारी फोर्सेस हैं, उनको ख़ास तौर पर इस बारे में एक जामे हिकमत अमली, जिस तरह से एक नेशनल एक्शन प्रोग्राम बनाया गया, और मेरा ख्याल है कि उसके ऊपर जब भी कोई अमल दरामद में कमज़ोरी आती है तो फिर इस तरह के वाक़यात बढ़ते हैं। लेकिन एक डॉक्टर साहब रवायत पड़ गई हमारे मुल्क में, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं करते, हम लोगों को कटहरे में लाने से घबराते हैं, हम उस पर बात करने से कतराते हैं। लेकिन ये एक हकीकत है कि जिस तरफ अभी शैला रज़ा साहिबा ने तवज्जो दिलाई कि रिहेबिलिटेशन के नाम के ऊपर दहशत गर्दों को लाकर उनका जाल अपने मुल्क में बिछाया गया। एक अगर गौर से देखा जाए, हाफिज हमदुल्ला साहब पर कुछ दिन पहले अटैक हुआ है, आप ये देखें कि ये ख़ास पॉलिटिकल लोगों के ऊपर भी अटैक होते हैं और एक ऐसी पार्टी जो कि मैं समझता हूँ कि इनकी फैसिलिटेटर है और जिसने 9 मई को खुद भी साबित कर दिया कि उन्होंने भी कोई इससे कम जो है वो हिस्सा नहीं डाला पाकिस्तान में, जिस तरह से उन्होंने कोराम बर्पा किया। 9 मई के वाक़यात
یہ دہشت گردی پاکستان کے بدترین دشمنوں نے بھی پاکستان میں نہیں کی ہے. اس بات سے ہم انکار نہیں کر سکتے, نہ آپ انکار کر سکتی ہیں, نہ سینیٹر صاحب انکار کر سکتے ہیں. تو آج یہ بھی سوالیہ نشان ہے کہ 9 مئی کے واقعات کرنے والے اور کروانے والی لیڈرشپ کو بھی اس طرح سے کٹہرے میں نہیں لایا جا رہا, اور اتنی سپیڈ کے ساتھ نہیں ان کے ٹرائل ہو رہے جس طرح سے کہ ہونے چاہیے. تو ظاہر ہے جب ہم خود ری ایبلیٹیشن کے نام کے اوپر دہشت گردوں کو اپنے ملک میں گھسائیں گے, جب ہمارے بارڈر کی صورتحال یہ ہو جائے گی افسوسناک کہ یہاں سے جو مرضی چیز سمگل ہو کے نکل جائے, جو مرضی آ جائے, اور ادھر پیسوں کی بولیاں لگ رہی ہوں گی اور ظاہر لوگوں کو خریدا جا رہا ہے, تو یہ چیزیں ڈسکس کرنے والی ہیں نا. یہ پروگرام اسی لیے میں اور آپ اور ہم سب اسی لیے بیٹھتے ہیں. اور اگر ہم ان چیزوں کے اوپر ڈسکس نہیں کریں, ان چیزوں کے اوپر بولے نہیں, ہاں جہاں کہیں بھی ان چیزوں کا تدارک کیا جاتا ہے, جب کبھی کوئی ایکشن لیا جاتا ہے, تو پھر اس وقت کیوں کم ہو جاتے ہیں یہ واقعات. تو کیوں نہ ہم ایک جامع پالیسی جس طرح سے نیشنل ایکشن پروگرام تھا یا اس طرح کے دیگر تھے. لیکن مسئلہ یہی ہے نا کہ وہ نیشنل ایکشن پلان پر تمام جماعتیں اکٹھی ہوئی تھیں, مل کے جو ہے وہ کام ہوا تھا. اس وقت اتنی پولیٹیکل پولرائزیشن ہے کہ آپ لوگ تو اکٹھے بیٹھنے کو تیار بھی نہیں ہیں. تو وہ کس طرح وہ نیشنل ایکشن پلان, وہ یونٹی وہ کہاں سے لائیں؟ اسی کا تو فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. دیکھیں بات آپ نے بڑی مطلب ہے نا, یہ بڑا ریلیونٹ کویسچن ہے جو آپ نے کیا. دیکھیں اس وقت بھی جب وہ واقعہ ہوا تھا, جب ہمارے بہت سارے بچے شہید ہو گئے تھے, اور اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ ساری آل پارٹیز کی میٹنگ بلائی گئی, اور اس کے بعد نیشنل الیکشن پروگرام کے اوپر کروایا گیا تھا. اس وقت نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی, PMLN کی گورنمنٹ تھی. تو اس وقت اس کے بعد مطلب ہے کہ یکسر تبدیلی آئی سسٹم میں, اور یہ چیزیں رکیں. تو اس کے بعد رویے یہ تھے کہ یقین کریں, میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ میں تنقید برائے تنقید ایک پارٹی, یقین کریں کہ چیئرمین PTI اسمبلی کے اندر آتے تھے, وہ سیدھے راستے سے آنے کے بجائے چیئر جہاں پر MN فرنٹ لائن پر ان کی بیک سائڈ سے گزرتے تھے کہ کہیں مجھے اپوزیشن لیڈر سے ہاتھ نہ ملانا پڑے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب کرونا ٹھیک ہے میں سمجھ گئی میں ذرا کمپلیٹ کیجئے. میں نے پھر ہاں کوئکلی جب کرونا سٹارٹ ہوا تو ویڈیو لنک پہ میٹنگ بلائی گئی. بلاول بھٹو صاحب بیٹھے تھے, شہباز شریف صاحب ایز اپوزیشن لیڈر بیٹھے تھے, چیئرمین PTI اپنی بات کر کے اٹھ کے چلے گئے. مطلب ہے کہ ایک تضحیک اور حقارت کی انتہا ہوتی ہے, ایک حسد کی انتہا ہوتی ہے. بالکل یہ جو پالیسیز ہیں جو پورے ملک کو, اور جس سے سیکیورٹی سیفٹی ملک کی جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے, ان کے لیے سب کو جو ہے وہ یونٹی دکھانی پڑے گی, ادروائز ہم اس ناسور کا کبھی بھی جو ہے وہ کلاکامہ نہیں کر سکیں گے. ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں تو گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. ڈاکٹر صاحب کی طرف چلتی ہوں, بلکہ شیلا صاحبہ کی طرف چلتی ہوں. شیلا صاحبہ, میں نے آپ سے پہلے بھی پوچھا تھا کہ یہ تو ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ الیکشن کیمپین سے جو ہے وہ روکا جائے گا, اس طرح فری جو ہے کہ فری اینڈ نہیں ہوگا الیکشن کیمپیننگ کے لیے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, آپ کو یا آپ کہہ تو رہی ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ ہونے چاہیے, اور آپ کی جماعت کا یہ وتیرہ بھی رہا ہے کہ ڈسپائٹ لوزنگ یور لیڈر آپ نے پھر بھی جو ہے وہ الیکشن میں جانا پسند کیا, اور آپ نے الیکشن کو جو ہے وہ ترجیح دی, بیکاز یو سیڈ ڈیموکریسی از دی بیسٹ ریونج. ہیونگ سیڈ دیٹ, کیا آپ کو لگتا ہے اس کو جواز بنا کے جو ہے وہ ڈیلے کرنے کی کوشش کی جائے گی؟ آپ کی طرف سے, پولیٹیکل جماعتوں کی طرف سے نہیں کہہ رہی, میں بات کر رہی ہوں ان اداروں نے جنہوں نے سیکیورٹی دینی ہے, ان اداروں نے جنہوں نے انشور کرنا ہے, ان حکومتوں نے جنہوں نے یہ سب چیزیں انشور کرنی ہے, نگران حکومتوں نے. دیکھیں, میں کسی کے بارے میں, نیت کے بارے میں کیا کہہ سکتی ہوں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ الیکشن کے کرائے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے, اور عوام بالکل دے گی ووٹ. ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ حاصل یہ کون سے ہم قدوس بزنجو کے حلقے میں کیا صورتحال تھی کہ بزرگوں نے کہا تھا کہ وہ جا کے ووٹ دیں گے, اور لوگوں نے ووٹ دیا تھا. تو الیکشن بہت ضروری ہے. اب PTI کے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ حکومت کا بیان
उससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता जो असेंबली के फ्लोर पे दिया जाए। और असेंबली के फ्लोर पे यूसुफ रज़ा गिलानी का बयान था कि आप हमें ड्रोन दे दें, हम खुद करेंगे। अब इनको इस तरह के बयानात पता नहीं इनके किसी लीडर के कान में जाके कौन कहता है जो ये दोहराते हैं। मैं ये समझती हूँ कि ऑपरेशन राय रास्त ना होता तो आज सवात में पाकिस्तान का झंडा ना लहरा रहा होता। और हम कोई हंसते खेलते ये कह के नहीं आ गए थे जलसे करते हुए कि रुको तालिबान में आ रहा हूँ, या हम कोई तालिबान के तर्जुमान नहीं थे। हमने मोहतरमा की लाश उठाई थी, उसके बाद हम हुकूमत में आए थे और उसके बावजूद हमने ऑपरेशन राय रास्त किया था, क्योंकि हमने ये तजर्बा करके भी देखा कि हाथ और बंदूक में कैसे फासला किया जाए। मुल्ला सूफी से माहिदा किया और फिर हमने दिखा दिया, बिल्कुल हमने दिखा दिया कि देखो ये लोग अपनी ज़बान पे कायम रहने वाले लोग नहीं हैं। अब तक तकरीबन इनसे अब तक की तारीख़ में इनसे तकरीबन 14 दफ़ा मुज़ाकरात हो चुके हैं, लेकिन ये दहशतगर्द हैं। दुनिया की दूसरी जो तहरीकें हैं उनमें और इसमें फ़र्क है, इसमें मज़हब का भी रंग डाला गया है, जिसकी वजह से इनको अच्छी तरह से सहूलत कारी हो जाती है। तो हमने जब सूफ़ी मोहम्मद से माहिदा किया तो लोगों को बहुत पसंद आया और बड़ी तादाद में लोग निकले, लेकिन जैसे ही उसने माहिदा तोड़ा पाकिस्तान की तारीख़ की जो है वो बहुत बड़ी इंटरनल डिस्प्लेसमेंट हुई, अंदरूनी हिजरत जिसे कहते हैं। और फिर जब हमने अमन कायम किया तो लोग बहुत खुशी से गए, हमने खुद उन्हें बिठाया, खुद उनको खर्च दिया और मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। और ख़वातीन के हाथों में मेहंदी तक लगी हुई थी और हमारे साथ उस वक्त ANP के भी 2-3 या 2 MPAs होते थे और हम उनके साथ जाके सारा काम कर रहे होते थे कराची में। और तो ये सारी बातें हैं, हमें ये देखना है कि ना तो ये मुज़ाकरात से सही हो रहे हैं ना रिहेबिलिटेशन से, उल्टा हमें ही मार रहे हैं। तो हमें अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। नेशनल एक्शन प्लान मौजूद है, उस पर अमल करने के लिए ये चीज़ें हमेशा से ये चलती रहती हैं। उन पे उनका काम है वो अपना काम करें और हमारा ये काम है कि बहैसियत शहरी हम इनसे जो है डरे नहीं, इनकी सहूलत कारी ना करें। फ़ौज का अपना काम है, हमारी अपना अंदाज़े जंग है। ठीक है, राइट। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि क्या आपका ये खदशा है कि इसको जवाब बनाकर इलेक्शन जो है वो लेट हो सकता है? क्या खदशा है आपका ये? देखिए जो चीज़ें हो रही हैं उसको जब आप सामने रखते हैं, जो अभी रीसेंट पास में हुई हैं, जिस तरीके से 2 असेंबलीज़ के इलेक्शंस नहीं हुए और कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन हुई है, जिस तरीके से CCI में 2 सूबों की रिप्रेजेंटेशन नहीं थी और उसमें इवन मेरे लिहाज से तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बैठना भी गलत था। वो लोग बैठ भी गए, दूसरी तरफ भी बात कर रहे हैं तो समझ नहीं आती। वो वोट भी देते हैं चीज़ों के हक़ में और फिर कहते हैं ये भी है फलाना है, तो उसकी भी समझ नहीं आती, वो भी गलत था। इस वक्त 2 जो प्रोविंसेस हैं उनके जो केयर टेकर है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। फिर जिस लिहाज से ये जो आर्टिकल 224(2) की खिलाफ वर्जी है 90 डेज़ के अंदर अंदर होना, वो भी गलत है। तो सारी चीज़ें तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो अब अगर उनको कोई बहाना चाहिए तो बहाना तो उनको बड़े अच्छे से मिल जाएगा। अगर ये ना भी हो, अगर वो नहीं करना चाहते तो जो लॉज आखिरी दिनों में पास हुए थे उसमें आपने उनको इनफ मटीरियल, इनफ एम्पावर कर दिया कि वो किसी तरीके से कर सकते हैं और प्रेसिडेंस हम लोगों ने मार्च अप्रैल में उनको दे दिया है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मुझे थोड़ा सा मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे भाई अली गौहर साहब ने दोबारा वो एक अलाप वो शुरू कर दिया सारी चीज़ें। हालांकि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के एक इंटरव्यू मुझे याद है कि जिसमें उन्होंने कहा था, और ये बहुत सारी जगहों पे है, आबदा हुसैन ने भी मेरे ख्याल में 2021 में भी कहा था कि किताब में भी हुआ था कि अगर कोई एक पॉलिटिकल पार्टी, कोई एक पॉलिटिकल लीडर जिसको फंडिंग हुई है एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से, सो वो मियां नवाज शरीफ साहब हैं। उसके अलावा किसी पॉलिटिकल लीडर को फंडिंग नहीं हुई। बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ मियां नवाज शरीफ वॉज फंडेड
बाय ओसामा बिन लादेन। ये बेनज़ीर भुट्टो साहिबा मरहूम की अपनी इंटरव्यू में है। अगर कोई चैलेंज करना है, मुझे चूँकि मैंने सिर्फ वो सुना हुआ है, मैं वो रिप्रोड्यूस कर सकता हूँ, मैं उसके अलावा कुछ नहीं कह सकता। लेकिन असल मसला मैं आपको एक बात बताता हूँ, असल मसला ये क्यों डिले हो रहा है, असल मसला ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है ये इस वक्त क्यों इस दर पे हैं कि इस वक्त कोई शवाहिद ऐसे नहीं है जो विदाउट रीजनेबल डाउट बता सकें कि जो लीडरशिप थे, ख़ास तौर पे जो चेयरमैन है पीटीआई का, जो कप्तान है, उसको इम्प्लिकेट करें। उसमें कोई जिसे कहते हैं ना ऐसे शवायद नहीं है जो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट हो। उनकी वजह यह कि आपको गैलप सर्वे आपने कल परसों देख लिया होगा, उसमें 61% जो है ना वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और लीडर ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो करते हैं। उसमें इन लोगों का नहीं। अच्छा, उसमें यह ज़रूर किया हुआ है कि अगर पीटीआई को एलिमिनेट कर देते तो फिर क्या होता, तो फिर ये लोग ही रह जाते ना फिर ये। अच्छा, उसमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। एक तो उसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि वो सबसे बेहतरीन लीडर कौन है या किसको सबसे फॉलो किया जाए, वो तो 60-30 का फ़र्क है ना, 60% वो है, 30 में ये लोग हैं। लेकिन उसका एक दूसरा रुख है, उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा जो नेगेटिव जो नेगेटिव पर्सनालिटीज़ हैं, पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़, उसमें आप देख लें तो पीडीएम के जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो सब 55, 56, 57, 60% से ऊपर उनकी रेटिंग है, एज अपोज टू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि 30% में। तो वहाँ पे रोल बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है। इनको असल में जो जिसे हम वो कहते हैं ना, वो पंजाबी में एक लफ्ज़ है, सॉरी मैं पठान हूँ, मुझे नहीं आता, मुझे नहीं समझ आती कि कहते हैं, इनको पसूड़ी पड़ी हुई है कि यार ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर दरमियान में मैदान में रह गया विद और विदाउट द लीडर, इन लोगों ने इलेक्शन जीत जाना है। और यही अभी लंदन में प्लानिंग हुई थी कि अब हम लोग क्या नैरेटिव लेकर आए। कारकर्दगी की नैरेटिव तो ये ला नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने पिछले एक साल में, एक और रिपोर्ट आई है कि पिछले एक साल में 1.25 करोड़ लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे आ गए हैं। अच्छा, पिछले एक साल में 13.5 बिलियन डॉलर्स का नुकसान किया है इस हुकूमत ने। तो इन लोगों ने अब ये क्या कहते हैं कि ये हमारी हुकूमत नहीं थी, उसकी हुकूमत नहीं थी, फलाने का। अरे भाई, ये आप लोगों की हुकूमत थी, आप लोग इसमें मिनिस्टर्स थे, आप लोग इसमें प्राइम मिनिस्टर थे, आप लोगों ने स्पेशल इंपोर्ट करके, आप लोगों ने डिजास्टर इंपोर्ट करके यहाँ लेकर आए थे। राइट, मैं जरा इनका पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं, फिर ब्रेक की तरफ जाना है। अली साहब, ये बताइए कि अभी जो बात हो रही है, जो इस वक्त डॉक्टर साहब जिसकी तरफ निशानदेही कर रहे हैं कि जी इस वक्त आपका बयानिया कोई नहीं है, और पहले आपने कोशिश की, अभी कुछ दिन पहले नवाज शरीफ साहब का ये आया कि जी दोबारा जो है वो एहतसाब की बात की जाए, क्योंकि लगता यही है कि एक तो ये शो करना चाहते हैं वापसी जो है किसी डील के सिलसिले में नहीं हो रही है, और दूसरा ये कि मैं अपने बयानिए पे जो है वो कायम दायम हूँ, ना गया था डील की बेसिस पे और ना वापस आ रहा हूँ, बट देन वो बयानिया कहीं पीछे रह गया है और अब कारकर्दगी भी वाकई नहीं है। तो ये इस पे ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन अगर डिले होंगे तो सिर्फ आप ही को सूट करता है। पहली बात तो ये है कि इलेक्शन के लिए हमारी पार्टी जो है वो बिल्कुल तैयार है, और 21 तारीख को नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, और पूरी पार्टी जो है और कारकुनान जो हैं वो जोशो खरोश के साथ नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल के लिए भरपूर तैयारियां कर रहे हैं। और जाहिर है कि जिन लोगों को नवाज शरीफ साहब की वापसी से जो लोग खाइफ हैं, तो वही इस किस्म के ख्वाब देखते हैं कि वो वापस नहीं आ रहे, इसी किस्म के प्रोपेगेंडा चलाते हैं। असल सूरत हाल ये है कि जिस तरह से कि मैंने पहले ये बात की है पहले सेगमेंट में कि नवाज शरीफ साहब क्या कहते हैं। नवाज शरीफ साहब की 13 से 18 की जो गवर्नमेंट है ना, वो पाकिस्तान के अवाम के दिलों में रची बसी हुई है, और उन्होंने उनकी कारकर्दगी को देखा हुआ है कि जिस तरह उन्होंने महंगाई का खात्मा किया, जिस तरह उन्होंने दहशतगर्दी का खात्मा किया, जिस तरह उन्होंने सी पैक जैसे प्रोजेक्ट मुल्क में लेकर आए, जिस तरह से चागी के मकाम के ऊपर धमाके उन्होंने करवाए थे। और यही वजह है कि हर बार नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को जो है वो मतलब तोड़ा गया, उसको उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की गई, उनको कैदो बंद की सोबतें, झूठे मुकदमात, जजों की ऑडियो वीडियो, ये सारा तमाशा पाकिस्तान कई दफ़ा देख चुका है। लेकिन क्या ये हमने देखना ये है कि हमने क्या खोया और क्या पाया। ये सारा करने के बाद जब हमने चेयरमैन पीटीआई वाला प्रोजेक्ट पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया और उसको पाकिस्तान पे मुसल्लत किया,
तो उसके क्या नताइज निकले? मईशत तबाह हो गई, सियासत में नफरतें, इंतशार। लेकिन फिर आप आए और उससे ज्यादा तबाह हो गई ना, तो लोगों को वो भी याद है। इस वक्त 13-18 नहीं याद लोगों को, इस वक्त वो याद है जो इस वक्त वो जिस कर्ब से गुजर रहे हैं। डॉक्टर साहिबा, जब 13 में भी गवर्नमेंट आई थी तो पहले 2-2.5 साल लगे थे उस मईशत को संभालते हुए। उस वक्त बिजली नापैद थी और बिजली के रेट्स बहुत ज्यादा थे, उस वक्त भी मसाइल थे, उस वक्त भी दहशतगर्दी के चैलेंजेस थे। ये लेकिन 13 का कंपैरिजन आप इससे नहीं कर सकते ना। इस वक्त तो जो बिल्कुल ही हालात बिल्कुल ही जो पिस गए लोग, उसका मुवाजना आप इस तरह नहीं कर सकते। और अनफॉर्चुनेटली अगर आप फौरन इलेक्शन करा देते जिस वक्त ये जिस वक्त नो कॉन्फिडेंस हुआ था, तो जो इस वक्त हालात है वो मुख्तलिफ होते वीज़ा वी द वोटर सपोर्टर। इस वक्त वोटर सपोर्टर तो आपको ये समझता है कि आप इसमें जो है इस जुर्म में बराबर के आप शरीक हैं, आपने हालात मजीद जो है वो ख़राब किए। यानी एक छोटी सी ब्रेक लेनी है अली साहब, वापस आती हूँ तो आपकी तरफ ही आऊँगी, गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करूँगी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले बात हो रही थी कि नवाज शरीफ साहब की वापसी और उससे बहुत सारी जो है वो कंट्रोवर्सीज भी जुड़ी हैं, बहुत सारे सवालात जो हैं वो भी जुड़े हैं। राना सनाउल्लाह साहब की एक ट्वीट आई है जिसमें उन्होंने कहा है जी नवाज शरीफ वतन वापसी के बाद मीनार पाकिस्तान पर जलसा करेंगे, मीनार पाकिस्तान पर ही मुस्लिम लीग नून के हतमी बयानिए का ऐलान करेंगे और अगले रोज़ अदालत में पेश होंगे। अली गौर साहब, ये सब कुछ तब हो सकेगा जब आपको प्री अरेस्ट बेल मिल जाएगी। अब ये इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है कि वो बेल मिल ही जाएगी आपको? देखें, जब मरियम नवाज साहबा के केस का फैसला हुआ तो उसके बाद तो, और जिस तरह से पैनामा का ड्रामा रचाकर उनको अकामा के ऊपर सजाएं दी गई, जिस तरह से जजेस की ऑडियो वीडियोस आ गई, और मरियम नवाज साहबा के फैसले के बाद तो जाहिर है अब नवाज शरीफ साहब का पेश होना ही रहता है, वो इस उनके फैसले में भी इस चीज़ की वजाहत कर दी गई है। दूसरी बात यह है कि नवाज शरीफ साहब ने तो उस वक्त भी अपने आप को कानून के सामने पेश किया था जब झूठे मुकदमे में उनको सजा सुनाई गई थी। वो अपनी अहलिया को जिंदगी और मौत की कश्मकश में छोड़ के कानून के आगे सरेंडर किया था। हालांकि उस वक्त भी उनको बैकग्राउंड चैनल से तो यही मैसेज दिया जा रहा था कि आप वापस ना आए और उधर रुक जाएं, लेकिन वो वापस आए और उन्होंने आकर उन चीज़ों का सामना किया। जाहिर है नवाज शरीफ साहब की सेहत को भी, अच्छा कहने वाले तो वैसे अली साहब कतक लाभी की माफ़ी, कहने वाले तो ये कह रहे हैं कि भेजने में भी जुडिशरी का हाथ था और वापस भी जुडिशरी ही ला रही है और गारंटीज भी कहीं वहीं से आ रही हैं। देखें, ये यकीनी तौर पर जब नवाज शरीफ साहब गए तो वो कोई जेल तोड़कर तो नहीं गए, वो अदालत और उस हुकूमत उनको भेजने वाली थी और अदालत ने उनको इजाज़त दी थी, कानूनी तरीके के साथ गए थे और जाहिर है वो वापस आएंगे तो कानून का सामना करेंगे। हम मीनारे पाकिस्तान में अब कारकुनान ने तो उनके नहीं, लेकिन जाहिर है मीनारे पाकिस्तान, देखिए नोबल अगर मैं और आप आए और इस तरह हम जो है वो एब्सकॉन्डर हों और हमारी जो है वो प्री अरेस्ट बेल का भी कोई पता भी ना हो तो हम 10 दफ़ा आने से पहले सोचेंगे। और ये भी डर होता है, शर्जील मेमन साहब के पास तो जो है वो प्री अरेस्ट बेल भी थी, उनको निकाल के किस तरह जो है वो घसीट के ले जाया गया एयरपोर्ट से। 2017 की बात है, आप लोगों की हुकूमत थी। सो ये भी जो है वो चीज़ें हैं। शैला राना साहब आपकी तरफ आती हूँ, क्या ये वाकई जो नवाज शरीफ साहब का और या राना सनाउल्लाह साहब का जो कॉन्फिडेंस है, ये माजी की जो लीगल प्रेसिडेंट्स है, मरीम नवाज साहिबा का जो ये केस का रेफरेंस दे रहे हैं, उसकी वजह से ये कॉन्फिडेंस है, या फिर कॉन्फिडेंस जिस तरह कहने वाले कह रहे हैं जी जुडिशरी ने भेजा था वापस भी वही लेके आएंगे? अच्छा देखिए, पता नहीं जुडिशरी ने भेजा था या ख्वाजा आसिफ कहते हैं वो बात मानो। तो बात यह है कि कानून मैंने नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन जितनी भी मैंने कानूनी माहिरीन की राय सुनी है वो यही कह रहे हैं कि प्रोटेक्टेड बेल भी नहीं मिल सकती, उसके लिए भी उन्हें खुद अदालत जाना पड़ेगा और बिल्कुल सरेंडर करना पड़ेगा पहले। तो मेरी तो बिल्कुल नॉलेज नहीं है। हाँ, तो अब मैं नहीं समझती कि वो कोई जेल जाने आने से डरते हैं। एक सियासी लीडर की ज़िंदगी में ये बहुत दफ़ा होता है कि वो जेल जाए या करे। तो अब कानून तो यही कह रहा है कि उन्हें पहले बेल लेनी पड़ेगी खुद जाके। अब जहाँ तक अदालतों की बात है तो हमने ये भी देखा था कि नवाज शरीफ साहब जब
पहले गए थे मुशर्रफ वाले केस में, उसमें 10 साल के माहदे वाली बात थी, तो नवाज शरीफ साहब को सज़ा हो गई थी और इन्होंने अपील भी नहीं की थी, और जब वापस आए थे तो अपील की मुद्दत ख़त्म हो गई थी, लेकिन इफ्तिखार चौधरी ने फिर से अपील करवाई और फिर उनको बरी किया। तो एक ये भी तारीख़ है, लेकिन अब क्या होता है ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो मैंने कानूनी राय सुनी है माहिरीन की, उसमें यही है कि ये बेल तो हो जाएगी इन्हें, लेकिन इन्हें आना पड़ेगा, पहले बेल के लिए जाना पड़ेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, यही चीज़ें जो है कानूनी माहिरीन की यही राय जो है हम भी सुन रहे हैं कि सरेंडर करना पड़ेगा जी फिजिकली, लेकिन पहले खुद सरेंडर करना पड़ेगा, कोर्ट के सामने अपने आप को सरेंडर करना पड़ेगा, बेल लेनी पड़ेगी। लेकिन राना सनाउल्लाह अगेन रिफरिंग टू हिज ट्वीट, ही सेइंग पहले जलसा करेंगे, वहाँ पे ऐलान करेंगे मुस्लिम लीग नून का क्या बयानिया होगा, और अगले दिन जो है वो हम कोर्ट के सामने जो है वो पेश होंगे। तो ये कहाँ से आ रहा है कॉन्फिडेंस? शुक्र करें राना सनाउल्लाह साहब ने ये कहा कि हम अगले दिन पेश होंगे। राना सनाउल्लाह साहब ने ये नहीं कहा कि हम 1 महीने बाद कोर्ट में जाके पेश होंगे, वो ये भी कह सकते थे। लेकिन देखिए शैला रज़ा साहब ने सारी बात कर दी है, लेकिन मैं आपके इससे पहले मैं आपकी एक बात को करेक्ट करता हूँ। आपने कहा था कि ये गौहर साहब को कहा था कि आप लोग इस जुर्म में शरीक है, वो जुर्म में शरीक नहीं है। उन्होंने बकौल ख्वाजा आसिफ साहब के और राना सनाउल्लाह के, इन लोगों ने इस्टेब्लिशमेंट और JUI के साथ मिल के जुर्म किया है। हाँ, पीपल्स पार्टी उनके साथ ये जो फाइनेंसेस वगैरह की बात थी ना, जो मुल्क नीचे गया है उसमें, वो इनके साथ शरीक हो गए थे। आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि पीपल्स पार्टी को नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो बीच में शरीक हो गए थे, लेकिन जुर्म उन्हें क्या था। बाकी रह गई बात, देखिए हिस्ट्री स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। वाहिद पॉलिटिकल पार्टी, वाहिद लीडर जो जब पॉलिटिशियन बना इस्टेब्लिशमेंट के साथ, बेनज़ीर के खिलाफ पहली बार आया, इस्टेब्लिशमेंट के साथ पैसे फंडिंग की सपोर्ट किसने की? तीसरा उसके बाद माजरत के साथ वैसे ये इस हवाले से अगर देखा जाए ना, तो हमारे सारे सियासतदान एक मिनट है, मुझे देखिए मुझे बात कर लेने दे, उसके बाद आप लोग अपनी बात में कर लें। मैं बड़े खामोशी से सुनता होता हूँ। देखिए मैंने हमेशा ये सीखा है कि मैं खामोशी से सुनूं, तो प्लीज मेरी बात भी खामोश। ये दोनों दूर बैठे हैं ना, देखिए ना, मैं बिल्कुल, देखिए हम सारे एक दूसरे के लिए, मैं शैला साहब के लिए हम सारे खामोशी से सुनते, शैला साहब हमारी सुनती है। वी माइट नॉट एग्री विद ईच अदर, बट वी हैव टू रिस्पेक्ट ईच अदर ओपिनियन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सर जी, उसके बाद मुझे बोल लेने दें। अच्छा, जैसे आपने कहा था कि मियां नवाज शरीफ अभी कह रहे हैं कि मैंने कोई डील नहीं किया, ये तो इन्होंने 2000 में भी कहा था कि मैंने कोई डील नहीं किया। वो शहजादा साहब थे, उन्होंने आके वो डील भी लाके दिखा दी कि ये डील था। तो देखिए सच झूठ तो हमारा बहुत कुछ होता रहा है। और बाकी रह गई बात, आप 2013 और 18 की बात कर रहे थे कि उसमें बहुत अच्छे फाइनेंसेस थे। उसमें आपको इंटरनेशनल इदारों ने कहा हुआ है कि आप लोग तो सारे जो नंबर्स है वो फज करते हैं। फज करने का मतलब है आप झूठ बोलते हैं। फज करने का मतलब है, माजिद के साथ वो ऐसे पुरानी बात है, वो डार साहब की पुरानी चीज है, इस टेन्योर पे नहीं कहा, वो फिगर मुझे पता है, मैं उसी टेन्योर, मैं 2013 और 18 का रेफरेंस दे रहा हूं, क्योंकि इससे पहले 2013 और 18 का रेफरेंस देते उन्होंने कहा था कि बहुत गंदा। अच्छा, एक मैं बात बता देता हूँ, पीपल्स पार्टी ने 2013 में इनको 4.7 GDP छोड़ कर गए थे। कोई बहुत बुरा नहीं था, जब 4.7 GDP पीपल्स पार्टी वाले छोड़ कर गए थे, तो इन लोगों ने 4007 से सिर्फ 5 सालों में 1.3 GDP बेहतर किया है। कोई इन्होंने बहुत बड़ा तीर नहीं मारा। उसमें भी जो फाइनेंशियल वाले कहते हैं तो ये पीपल्स पार्टी पे जो डाल रहे हैं, तो ऐसी भी कोई बात नहीं है। पीपल्स पार्टी ने इनको कोई बहुत गंदा बजट नहीं दिया हुआ था कि जिस पे ये लोग वो कर रहे हैं। तो ये देखिए बात चीजें हो जाती हैं कि आपको करना होता है, लेकिन असल बात ये है, जैसे शैला रज़ा साहब ने कहा और जैसे कानूनदान कह रहे, मैं तो कानून का वो नहीं हूं, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि आप इतने ज्यादा वसूख से कह रहे हैं कि आप आएंगे और जलसा करेंगे। उसूलन तो जो ही आप पाकिस्तान के टेरिटरी में लैंड हो, आपको जहाज से सीधा अटक जेल या सीधा किसी जेल में लेकर जाना चाहिए। हाँ, अगले दिन आप वापस। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है।
लेकिन उम्मीद करते हैं जिस चीज़ से हमने शुरू किया था उस पर हमारे एक नेशनल कंसेंसस जो है वो बने, बिकॉज इस वक्त सिक्योरिटी, political stability, economic stability, all are intertwined. We'll see you tomorrow. Good night and Allah Hafiz.